गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. सकाळच्या लेक्चरला आपण रेरा बघितलं होतं, रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट 2016. हाऊ टू रजिस्ट्रेशन अँड हाऊ टू ऑनलाईन ऍप्लिकेशन ऑफ रेरा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बघितलं आपण. प्रोटेक्शन ऑफ बायर्स प्रोटेक्शन ऑफ बायर्स राहिलं होतं. त्यानंतर रजिस्ट्रेशन कसं करतोय रेराचं ते आपण बघतोय. कार्पेट एरियाचं चालू होतं आपलं. Act prohibited झालेलं आहे. Carpet area has been clearly defined in the act to include unsable spaces like kitchen and toilet. This is RERA Act for carpet area. The area of property is often calculated in three different way, means carpet area, built up area, and a super built up area. Means when comes into buying the property, this can lead to a lot of disconnect between what you pay and what you actually get. Means Gautam Chitraj Maharashtrian RERA chairman, means size of their means all the ongoing project is disclosed, means size of their apartment and basis on carpet area. Okay, means the area within four walls, the including unstable space like kitchen, toilets, and any means this imparts clarity, which was not the case earlier. Means according to RERA, carpet area is, means the definition for carpet area defines as the net means usable floor area of an apartment, means excluding the area covered by the external walls, means area under services shift, means exclusive balcony or veranda area, means exclusive open terrace area, means but includes the area covered by the internal partition walls, okay, of the projects. Then real estate regulatory authority applicate tribunal, means established of state level real estate regulatory authority RERA to regulate transaction related to both residential and commercial project. Means RERA approved project, which project can RERA get RERA approval. Means RERA will ensure timely completion and handover of the project. Means appellate tribunals will not be required to adjudicate means cases in 60 days, means against the earlier provision of 90 days. And regulatory authorities have the dispose of complaint, means 60 days, while no time frame was indicated in earlier bills. Means commercial and industrial projects, including plotted development, means project measuring more than 500 square feet square meters or 8 units. Then project without completion certificate, means before commencement of the act. Project is only for the purpose of renovation, means repair, redevelopment, which does not involve reallotment and marketing, advertising, and sealing. Means not new allotment of any apartment, plot, or buildings in the real estate project. Uh, Projects will not come under the RERA. Means is space to the treated as standalone real estate project requiring fresh requirement. Then the Union Ministry of Housing and Urban Allocation issues notification April 19, 2007, announcing the section 3 to 19, 40, 59 to 70, 17 and 18 of the Real Estate Regulation and Development Act 2016, which shall come in force on May 1st May 2017. This is future implementation of the amendment. Means the measures are expected to boost domestic and foreign investment in the sector, the help achieve the object of the government of India to the providing housing for all by 2022 through the enhances private partition.
Means any information builders need to provide under RERA, means number, type, and carpet area of apartment, and constant from affected allotted for any major addition of alternate, means project completion time frame, means any area with updating area RERA of the website with details such unsolid inventory and pending approval. Means no false statements, commitment in the advertise, no arbitrary cancellation of units by promoter. This is the main implementation of the RERA. In the bill aims at restoring confidence of the general public in the real estate sector by instituting transparency in the accounting in the real estate and housing transaction. This is the term will enable to the sector to access capital financial market essential for long-term growth. Means bill will promote organic growth, means through consequent efficiency, means project execution, means professionalism and standardization. The bill is expected to ensure greater accountability, means towards consumers and significantly reduce cost and delay. And bill is also expected to promote, regulate, and ordinary growth, means through efficiency, promotion, professionalism, and standardization is seek to ensure, means consumer protection, means without adding another stage in the procedure for the sanction. And then silent features of real estate project and registration of real estate agent. Fourth is the mandatory public disclosure of all project detail. And fifth is the functions and duties of promoters. Okay, means how to register project under the RERA, and what are the silent features of the RERA. First, applicable of bills is the proposal initial bills and was applicable for residential real estate, and it is now proposed to the cover both, means residential and commercial real estate. Second is the real estate authority can established, establishment of one or more real estate authority in each state and union territory, means UT, or any authority for two or more state UT, means by appropriate government for oversight of real estate and transition, means to appoint one or more adjacent officer to dispute import compensation of interest. Okay. How to registration of RERA. A mandatory registration of real estate project is real estate agent who intend to sell any plot, apartment, or buildings with the real estate authority. Means authentication copy of all approval commencement, means certification, sanction plan, any specific plans, and work proposal facilities, and any agreement for sale conveyance date to the given, means any applying for project registration with the RERA, means mandatory registration of new and existing project with the RERA authority. And mandatory public disclosure all project details, means mandatory public disclosure norms for all registered projects, such as details of promoters, means project layout, plan of development work, and land status of stationary approvals, and disclosures of performa, and agreements, names, and address of real estate agent, contracts for architecture, structure engineer, extraction, means dispute solution within 6 to 8 months for the at RERA applicant tribunals, means separate registration of different piece of single project. Means any developers are to share details of project and launch in the last 5 years with the status and the reason for delay with RERA. Okay. Last function and duties of promoters, means disclosure of all relevant information of project, the, adherence to approval plans and project specification, and this obligations regarding a variety of advertisement for sale or prospector, and refund money in the case of default. The silent features of amendment. Then silent features of amendment: compulsory deposit of 50%, adherent to declared plans, function, real estate right duties. आपण बघतोय आता आपल्या व्हिडिओ मध्ये आपल्याला कळेलच. ओके, हे त्याचे सायलेंट फीचर्स आहेत.
हे आपण आता जे रिअल इस्टेट बघितलं ऍक्च्युअल गव्हर्नमेंट आपण कसं रजिस्ट्रेशन करतो त्याचा एक 10 मिनिटाचा व्हिडिओ ते पण बघूया. ओके. किंवा हाऊ इम्पॅक्ट इन्शुरन्स कॉस्ट फॉर कन्स्ट्रक्शन अँड लाईन टायटलला कसं होतं ते पण बघू. पण आता रजिस्ट्रेशन कसं करायचं ऑनलाईन रेराचं ते एकदा बघूया आपण. लायसन कॉपी कसं घ्यायचं ते पण बघूया. ISO मगाशी एक राहिलेला ते नंतर. आता रेराचं बघूया आपण. हाऊ टू रजिस्ट्रेशन ऑफ रेरा. वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल प्रोफेशनल गुरुजी हे गव्हर्नमेंटचं आहे. सो ते आपण व्यवस्थित बघूया. आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हम प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं अंडर रेरा। अगर आप बिल्डर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो और आपको बिल्डर का प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कौन से वेबसाइट पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और क्या प्रोसीजर है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। तो हम ये वेबसाइट पे आ गए हैं। आपको अगर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है रेरा के अंडर तो इस वेबसाइट पे आ जाइए maharera.mahaonline.gov.in। इस पे आपको प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये रजिस्ट्रेशन टैब में जाके रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स का आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो तो। अगर आपको प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे जाइए ऑनलाइन एप्लीकेशन के टैब में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी अभी तो आपको ये दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगा, एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा। और आपका प्रोजेक्ट आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आप आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, यूजर आईडी वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप सब लोग देख सकते हैं कि हम दूसरे वेबसाइट पे आ गए हैं जहाँ पे हमें हमारा प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना है प्रमोटर के थ्रू। तो ये दूसरा वेबसाइट है maharera.it.mahaonline.gov.in। यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो प्रमोटर का। एज अ प्रमोटर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप क्लिक करिए प्रमोटर पे। आप अगर महाराष्ट्र स्टेट से हो तो आप सेलेक्ट करिए महाराष्ट्र और आपको यूजर नेम चूज करना है। तो जैसे कि मैं अभी गुरुजी यूजर नेम चूज करने वाली हूँ 2020। आपको पासवर्ड डालना है, आपका खुद का पासवर्ड क्रिएट करना है। अभी मैं सिंपल पासवर्ड ट्राई करने वाली हूँ ताकि हमें जल्दी एक्सेस मिल जाए। यहाँ पे मैं मेरा खुद का मोबाइल नंबर यूज करने वाली हूँ। जस्ट मैं मोबाइल नंबर मेरा टाइप कर रही हूँ, ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी डालिए जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इससे आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एवरी टाइम आपके प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उसका आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। इस वेबसाइट पे आके हम कैप्चा कोड डाल लेते हैं। अभी हमारा यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट यूजर। तो आपका जो वेरिफिकेशन लिंक है वो ईमेल आईडी पे सेंड हो जाएगा। तो वहाँ आप अपना ईमेल आईडी ओपन करके लिंक पे क्लिक करके आप आगे का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आप ईमेल आईडी पे मेरा एक्टिवेशन लिंक आ चुका है, वेरिफिकेशन लिंक आ गया है जिस पे हम क्लिक करके आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ क्लिक करती हूँ। ओके, मेरा ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी मैं आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकती हूँ बाय लॉगिन। तो आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है बाजू में उसको भी प्रेस कर लिए। इससे क्या होगा कि सारे मेरे इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा और आप अर्ली एक्सेस कर पाओगे। और आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं लॉगिन के पेज पे आ चुकी हूँ। मैंने मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है।
कैप्चा कोड भी डाल के रखा है। अभी हम लॉगिन करते हैं और आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, हमारा लॉगिन हो गया। अभी हम एक नया प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये प्रमोटर है, आपको अभी आपके बेसिक डिटेल्स डालने हैं। माय प्रोफाइल में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है। अगर आप इंडिविजुअल हो, एज ए इंडिविजुअल आप प्रमोटर हो, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका काम से कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले हो, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करिए। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनीज हो या कोई जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर के थ्रू आप कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हो, तो आप अदर देन इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल हो, इस केस में मैं इंडिविजुअल बेसिक इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करिए, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, पैन नंबर, आधार कार्ड डिटेल्स डालिए। आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है क्या, आपने कोई प्रोजेक्ट पहले किया है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो आप उस पे येस पे क्लिक करिए और उसका आपको डिटेल्स मांगेगा अभी इधर, तो वो देना पड़ेगा। अगर आपका नहीं है तो मैं यहाँ नो सेलेक्ट करती हूँ। और इसमें से कोई भी अथॉरिटी आपको रेगुलेट करता है, जैसे अगर हम नवी मुंबई से है तो हमें सिडको हमारा अथॉरिटी है जो हमें रेगुलेट करता है, उनसे हमें परमिशन लेना पड़ता है। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो महाड़ा है, वो सब हमें रेगुलर अथॉरिटी है जो हमें रेगुलराइज करते हैं, उनका परमिशन हमें लेना पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें कमिटमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप सिडको आपको रेगुलेट करता है। फिर आपको आपका एड्रेस देना है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन का एड्रेस देना है आपको। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे पूछा है, सेम मोबाइल नंबर आप यूज़ कर सकते हो, ईमेल आईडी भी सेम यूज़ कर सकते हो। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालिए और आपका प्रोफाइल यहाँ से सेव कर दीजिए। तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन डालिए। वेबसाइट है तो वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन डालिए और फोटो आपका अपलोड करिए और इस प्रोफाइल को सेव कर दीजिए। फिर आपका ये वन पार्ट है रजिस्ट्रेशन का। आपको बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अकाउंट्स में जाके आपका माई प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल्स डाल दीजिए, ठीक है। अगर बाद में कभी फ्यूचर में आपको लगे कि आपका पासवर्ड आपको बदलना है तो आप यहाँ से आपके पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। फिर आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स का फीडिंग करना है। ऐड प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है, जो भी आपने जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने वाले प्रोजेक्ट का डिटेल्स है, तो आपको ऐड प्रोजेक्ट में जाके आपको डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पे मैंने पर्सनल डिटेल्स नहीं फीड किया है, इसीलिए वो मुझे बोल रहा है कि आपको पर्सनल डिटेल्स पहले फीड करना है। अगर आप पर्सनल डिटेल्स फीड कर लेते हो तो आपको ऐड प्रोजेक्ट में जाना है और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालने हैं। अगर आपको इंडिविजुअल के अलावा आपके साथ कोई और प्रमोटर भी है, दो इंडिविजुअल्स मिलके अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप ऐड प्रमोटर में इस टैब में जाके आपके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं दूसरे प्रमोटर का। अगर सिंगल प्रमोटर है तो आपको ऐड प्रमोटर में कोई डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐड बिल्डिंग्स में आपको बिल्डिंग्स का इन्फॉर्मेशन डालना है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपसे मांगते हैं वो लोग, कितने बिल्डिंग्स है प्रोजेक्ट में। जैसे आप 10 बिल्डिंग्स कंप्लीट करने वाले हो या 5 बिल्डिंग्स कंप्लीट करने वाले हो, उनका कारपेट एरिया क्या होगा, अपार्टमेंट टाइप क्या होगा, टोटल कारपेट एरिया कितना है, सारे डिटेल्स आपको पूछेंगे। फिर आपको ये नेक्स्ट टैब भरना है कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज वाला, जिसमें अब तक आपने कितना काम स्टार्ट कर दिया, ये रजिस्ट्रेशन होने से पहले कितना काम किया आपने, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क डन है, कौन कौन से फैसिलिटीज आप देने वाले हो इस प्रोजेक्ट में, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्रोफेशनल डिटेल्स डालना है, मतलब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से प्रोफेशनल्स आपसे एसोसिएटेड है, जैसे कि आर्किटेक्ट कौन सा है, इंजीनियर कौन सा है, उसका आपको नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी, आपको ये सब डिटेल्स इधर डालने हैं। आपने कौन से सीए, कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया है, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। फिर अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन चालू है, उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। अगर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन नहीं है तो आप ये टैब स्किप कर सकते हो। फिर आपको ये इंफॉर्मेशन डालना है प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है।
प्रोजेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड अब तक आपने कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट इंकर्ड किया है और आपका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, ओवरऑल प्रोजेक्ट का आपने कितना अब तक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंकर्ड किया है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे रहेगा। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये टैब में जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टैब में जाके तो देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट डिटेल्स ऐड करना है। ऐड प्रोजेक्ट कॉस्ट में जाके आपको ये सारे डिटेल्स डालने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, आपने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया रहेगा तो प्रोजेक्ट का डिटेल्स आ जाएगा। आपको सीए से फॉर्म 3 सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और आर्किटेक्ट से भी आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आपने कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपका, आपने कितना कॉस्ट इंकर्ड किया है, कितना कॉस्ट इंकर्ड करने वाले हैं फ्यूचर में, सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉस्ट का इंफॉर्मेशन है। तो अभी हम आगे देखते हैं टैब, आगे का टैब देखते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करने ही पड़ेंगे। जैसे देखिए इस केस में पैन कार्ड डालना है, आपको पैन कार्ड डाला हुआ है, लीगल टाइटल रिपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स चूज फाइल करके देन अपलोड पे क्लिक करना है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। फिर एनकम्बरेंसेस सर्टिफिकेट आपको डालना है, जो आपका प्लान अप्रूव हो गया है, लेआउट अप्रूव हो गया है उसका डिटेल्स डालना है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल का डिटेल्स अपलोड करना है और जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, फॉर्म भी अपलोड करना है। इन सब का जो फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी कर दूंगी तो आपको इजीली आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा सर्टिफिकेट्स का। तो आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट भी डालना है जो फॉर्म 1 में के तहत हमको मिलता है, इंजीनियर का सर्टिफिकेट ऑन कॉस्ट इनकर्ड और फॉर्म 3 ये भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, सीए सर्टिफिकेट ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड फंड विड्रॉल फॉर्म 3 और ड्राफ्ट एग्रीमेंट फॉर सेल, प्रोफॉर्मा ऑफ द अलॉटमेंट लेटर एंड एग्रीमेंट फॉर सेल आपको यहाँ पे डालना है, ये भी मैंडेटरी है। उसके अलावा सब ऑप्शनल है, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी बाकी के डिटेल्स डालने हैं, स्टेटस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीगल एंटिटी, फॉर्म 4 एंड स्टेटस ऑफ कन्वेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स और ओसी का डिटेल्स आपको जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी डालना है। तो आपका सारा ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके हो जाएगा तो आप आगे के टैब में जा सकते हो, टास्क और एक्टिविटी। आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सारा डिटेल्स भर के हो जाएगा तो आप टैक्स और एक्टिविटी वाले टैब में इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो। आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे एप्लीकेशन विड्रॉ करना है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो विड्रॉल के लिए, या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हो। ये सारे टैब फिल करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो आपका सारा डिटेल्स फिल करने के बाद। अभी फिलहाल नहीं होगा और इनकेस आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, आपने जो टाइमलाइन यहाँ के रजिस्ट्रेशन में बताया है, तो आप प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कुछ फीस है, रेरा का कुछ सम अमाउंट ऑफ फीस है जो आपको पे करना है और प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारे टैब आप अगर प्रॉपरली भर देते हो तो उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट का ऑप्शन पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइसनिंग प्रोसेस काय आहे ते पण बघूया आपण। builders under new real estate ते पण आपण We are going to speak today is about the licensing for builders and developers
under new Real Estate Regulation and Development Act of 2016, which was passed in Parliament and notified on 24th March. Now it will be it is in effect from 1st May 2016 in entire India. Now, since housing is a state subject, every state government is going to have its own regulatory authority established under this act, and which will be done within 1 year of the passing of and the act in coming in force, say 1st May. So before 30th April 2017, entire India, all the states, we are going to have the real estate regulatory authority as well as the real estate tribunals. Maybe the state government having its own real estate tribunals, or maybe two state combined together and form one real estate tribunal. Let's talk about the licensing system, or how to get a license for builders. Builders are normally going to be the biggest, you can say, controlling factor in Real Estate Act. The entire act is actually formulated or enacted to control the real estate development activities and real estate transaction process in the country. This is the main object of the act. Henceforth, the developers are now going to have some give away all the traditional way of doing business, like pre-launch or carpet area or agreement for sale been entered into after 20% and all that. But we are going to speak in this episode about the licensing system for developers or builders. After the authority comes into force, every ongoing project within 3 months must get the license or approval from the authority. Now, the question is that which is ongoing project? Let's define the ongoing project. All those projects which have got the IODCC, that is intimation of disapproval, and the CC, commencement certificate, and have not got the OC, or any future project which either 500 square meters and above or 8 units in a specific project in any phase, you require to take a license and approval for that particular project. It will not be a builder specific license, it will be project specific license. So whether it is two developers having a partnership firm, or a joint venture, or SPV, or a development agreement, or joint agreement, or whatsoever it is, for a project specific you need to take a license. After you get the license, within 7 days you have to upload on the authority's website all the possible information that it all includes, and it has been defined in the act that you need to upload the land title, the permissible permissions you have got. Unless the permissible permissions and sanction plans are passed, all the plans need to be sanctioned and passed, then only you can start selling the project. You cannot have a pre-launch. After you get the license, you have to upload. It includes the land title, it includes your team, it includes your brokers who is going to do, it includes also the mortgage or any charge you have created on that particular asset, or any person have funded, or any house which have funded the project or mortgage. You must put in all the information for the public domain. Now, any person who is calling as promoter or developer must take this license. If you do not take a license and you still go and construct, then there will be a penal interest, there will be penalties, prosecutions. If you don't obey the authority orders, then there are penalties. The penalties can go up to 10% of the total project cost. And project cost is, if suppose it is 100 crore project, then 10 crore would be your this. Another very important and vital thing is that you need to give the possession date in that particular information which you upload on the authority's website.
possession date, people saying that okay, I'm going to put it 10 years after today, maybe in 2017 or 2027 I'm going to give you the possession, then you cannot compel the buyers or people those who have booked in that particular project to pay you within a year or two. They will also pay you within 10 years. So it is that exchequers or people those who have made this law are shrewd enough. Some definitions which is very vital, that is carpet area or advertisements or promotions. Whatever you make a promise in advertisement, promotion, website, orally, or by through agents, or by gestures or postures, then also you are duty bound. There is Supreme Court judgment also on that. But then now the act says that whatever you promise, you have to deliver. And the basic uh, act of obligations is that ignorance of law is not an excuse. So all the developer, this is a big plethora of act. You should go thoroughly, go with some professional person, those who can make you understand the act, because 10% of the project cost, or if you have certain specific questions like say MOFA is not repealed, or in DCR there are some carpet area defined, then central government has also defined the carpet area. So article 254, which says that if there is the act between the center and the state government, the central act will prevail over, or it will supersede the state government's act. So whatever acts which are being passed in state level, it will be now not treated in offing. Now it will be a Real Estate Development and Control Regulation Act which will be there. I believe that you must go in for the licensing system for project specific. All those buildings which have not got OC, and after 10, 15, 20 years the builders are not traceable, then the occupant must go to the authority and seek the either exemptions or go for the formality of taking the OC. Thank you very much. If you need to contact me, you can send me your questions on sanjay@accommodationtime.com. Thank you.
less than 5 year. Okay. Then is any employee in services responsible for capacity in retired for he and she has been practicing consulting engineer for not less than 2 years. And young profession means he and she has been a young profession membership. This individual continuously for 10 years in form of consulting engineering. Okay. Student वेगवेगळ्या मेंबरशिपमध्ये आपण मेंबरशिप होऊ शकतो. प्रोफेशनल असेल तर एनी स्टुडंट मेंबरशिप असेल तर त्याला डिग्री काय लागते. एनी स्टुडंट इन फायनल इयर डिग्री असेल, अंडर अंडर गोइंग पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्स्युइंग असेल इन और असेल. ओके. त्यामध्ये पण मेंबरशिप अॅन्युअल किती असते ते चार्जेस पण आहेत. 1 इयर असेल तर 1000, 2 इयर असेल तर 2000 डिपेंड त्या त्या स्टँडर्डनुसार. Okay. Then CAI was incorporated in 1996 with the merger of two leading national association, means Association of Consulting Engineering India. ओके. तुम्ही नेटवर CAI टाका, पूर्ण डिटेल्स तुम्हाला दाखवेनच गुगलवर. ACI 1 means incorporated in 1960s National Association of Consulting Engineer. It is incorporated in 1967. Means CAI has a behind in 6 decades of accumulated knowledge and experience. Okay. CAI promote the interest and works to enhance the status of consulting engineering profession in India. Okay. CAI has advocated global network and corporated, and CAI's activity includes कुठले तर quality development of consultant, product productivity enhancement, promotion of ethical practice, facilitation and interaction with government and other authorities, bodies, sorry, authorities body means to streamline and improve the system of engagement of consultant. Okay. What is a consulting engineer? Consulting engineer म्हणजे आपल्याला comment कळतंय. Consulting engineering is the work in private. Okay. There is no salary from the employees, but the charges free from sponsor, and they have more freedom to decide on their project, and still they have no absolute freedom, or because they need to earn for their living. The consulting engineers have ethical responsibility different from salaried engineers. Okay. Means as follows: advertising, and then competitive bidding, and fees contingency
MCPs and safety of clients of needs. Okay. मेन आपल्याला CEIचं नेटवर दाखवतेच मी तुम्हाला. CEIचे असे हे करायचे तुम्हाला. कॅपिटल CEAI ओनली असं ओपन करा, तुम्हाला दिसेलच. हे बघा, हाऊ टू जॉईन, अबाउट CEI, मेंबरशिप डिक्शनरी, कॉन्टॅक्ट अस. इथं दिले कन्सल्टिंग इंजिनियर असोसिएशन. सॉरी, मी शेअर केले नसेल. सगळ्यांना दिसते. CEI वेबसाईटवर तुम्ही बघू शकताय. कन्सल्टिंग इंजिनियर असोसिएशन ऑफ इंडिया. ओके, ऑफिस कुठे आहे तर ऍड्रेस दिले न्यू दिल्ली. त्यामध्ये काय असते बघूया. फर्म आहे म्हणजे कन्सल्टिंग असोसिएशन, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन इथं पण दिलंय. ओके, अबाउट कन्सल्टिंग काय आहे, हिस्ट्री काय आहे, त्याचं कोड ऑफ इथिक्स काय आहे. ओके, गव्हर्नमेंट काउन्सिल कुठले, कमिटीज कुठले आहेत, CEIचे न्यूज काय काय आहेत, त्यामध्ये इंडस्ट्री न्यूज आहेत, ब्लॉग बनवतात, फ्युचर लीडर्स न्यूज आहे, मेंबर न्यूज आहे. ओके, इव्हेंट कुठले कुठले, पास्ट CEI इव्हेंट कुठले आहेत, त्यामध्ये डिटेल्स आहे. तुम्हाला वाचायचंच असेल तर ते बघू शकताय. तुम्हाला कुठले कुठले प्रेसिडेंट वगैरे काय काय दिलेलं आहे की आपल्याला फक्त माहित पाहिजे की CEIचं मेंबरशिप कशी होतात. लास्ट आपल्याला बघायचं होतं, आपल्याला ISOचं राहिलं होतं सकाळी मला दाखवायचं. हाऊ टू अबाउट ISO सर्टिफिकेट कसं मिळतं आपल्याला. मी काल ह्याच्यात दिलेलं होतं की सर्टिफिकेटवर ISO लोगो कसं येतं त्याचा. एकदा बघूया आपण. हे झालं की स्टॉप करूया, उद्याच्या लेक्चरला राहिलेलं बघूया. वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ISO रजिस्ट्रेशन या ISO सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, तो कई लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो हमेशा देखते होंगे, और जो बिजनेस वाले वो हमेशा एक ISO सर्टिफिकेट यूज करते रहते हैं और अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जी हाँ, तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये ISO होता क्या है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है बिजनेस के अंदर, क्या इसकी कॉस्टिंग आती है, कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, और कहाँ पे जाकर आप खुद भी जो है ऑनलाइन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं या किसी और से कैसे ले सकते हैं, कैसे जेन्युइन होता है, कैसे इसकी वैलिडिटी चेक की जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सिंपली एक और ऐप जो है जरूर डाउनलोड करनी है, वो है ISO सर्टिफिकेट ऐप जो हमारे द्वारा बनाई गई है। इसके लिंक जो है आपको प्ले स्टोर की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं ISO की क्या चीज होती है। तो देखिए, ISO सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है। ISO बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप कोई सब्जी बना रहे हैं। अब सब्जी के अंदर बेसिकली क्या हो गया, वेजिटेबल डाल दिया आपने, वो कुछ डाल दिया, तो उसका आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि उसके अंदर इतनी चीजें ये तो डलनी चाहिए, तभी चीज ये परफेक्ट बनेगी। अगर इससे नीचे है तो फिर वो लो क्वालिटी हो जाएगी। इसी तरीके से ISO ने क्या किया, ISO ने स्टैंडर्ड बना दिए हर बिजनेस के, हर सेक्टर के। अगर ये स्टैंडर्ड अगर आप अपनाते हैं, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वो एक नंबर की है। जी हाँ, तो बेसिकली अगर मैं ISO की बात करूं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका ऑफिस है, और बेसिकली इसके अंदर कई सारी कंट्रीज जो है बेसिकली मेंबर्स है। अब मैं बात करूंगा ये जो ISO है ये खुद ही सर्टिफिकेट इशू करता है या इसने किसी को अपॉइंट कर रखा है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसने किसी को अपॉइंट कर रखा है, उसका नाम है IAF, जो इसके मेंबर होते हैं। बेसिकली IAF का मीनिंग जो होता है वो आता है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म। अब इसके अंदर कई सारी कंट्रीज यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। अब इसके अंदर भी अब मैं बात करूंगा कि कौन इसको इशू करता है। तो दो टाइप की जो है यहाँ पे चीजें आती है। एक तो आती है आपकी IFF बॉडीज। IFF बॉडीज क्या होती है, इनके साथ में जिन्होंने टाइप किया होता है। अगर देखिए, अगर इस लिंक के ऊपर इनकी वेबसाइट बनी हुई, यहाँ पे जाकर आप इंडिया का सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंडिया के अंदर आपको ये देखिए NABCB और NABT, ये दो ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगी जो बेसिकली ISO को यहाँ पे हैंडल करती है। अब ये गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसके साथ में और दूसरी कंपनियों ने यहाँ पे टाई अप किया होता है जो ISO सर्टिफिकेट वगैरह इशू करती है। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई IFS बॉडीज जो सर्टिफिकेट इशू करती है, एक हो गई नॉन IFO बॉडीज। अब मैं बात करूंगा कि जो लोग सर्टिफिकेट लेते हैं वो कहां से लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं IFF ISO की, तो ये बेसिकली अब जब भी गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए किसी को अप्लाई करना होता है तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिर्फ केवल IAF को ही मानती है। जी हाँ, लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं, जैसे जो छोटी मोटी जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं, आपको पता होगा, आप कहीं पे कुछ कोर्स करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके ऊपर ISO 9001 लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो छोटी मोटी फर्म्स होती है वो जो ISO देती है चीप प्राइस के अंदर, ये क्या होती है, ये नॉन IAF मेंबर्स वाली होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ISO सर्टिफिकेट इशू करती है। तो ये जो सर्टिफिकेट केवल यूज में लिए जा सकते हैं, वो केवल ब्रांडिंग
और प्रमोशन या किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट टेंडर्स इनकी बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ जो आईएएफ रिलेटेड जो बॉडी से वही जो सर्टिफिकेट इशू करती है उसी को केवल मान्यता यहाँ पे प्राप्त होती है। अब मैं बात करूंगा कि इसके बेनिफिट क्या है। देखिए बेनिफिट तो कई सारे, चाहे आप एक आईएएफ आईएसओ ले या फिर एक नॉन आईएएफ आईएसओ ले, दोनों के अंदर बेनिफिट है। जैसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज का जो ट्रस्ट है वो बेसिकली गेन कर रहे हैं। उसके साथ में आपका गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट्स है कि आपको एक आईएसओ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो वहां पे आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। और उसके साथ में आपके जो ऑपरेशंस है, आपकी जो ऑपरेटिंग इफिशिएंसी है उसका एक स्टैंडर्ड बन रहा है, मतलब आपके जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी उनका स्टैंडर्ड हो गया, वो एक प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो रही है। तो कई सारे यहाँ पे बेनिफिट्स है। अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स की कि आईएसओ अगर आपको अप्लाई करना है, आपको लेना है एक आईएएफ आईएसओ मतलब बेसिकली बॉडी के थ्रू या नॉन आईएएफ, दोनों के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं अगर मैं देखिए यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आईएसओ लेते हैं, क्योंकि आईएसओ भी बहुत सारे टाइप होते हैं जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करने वाला हूं। तो बेसिकली मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे आपका फर्म का पैन कार्ड या आपकी कंपनी का पैन कार्ड हो गया, जीएसटी हो गया, इसके अलावा इनवॉइसेस हो गए, उसके अलावा ब्राउचर्स वगैरह हो गए, उसके अलावा आपके जो भी सप्लायर्स है उनकी थोड़ी बहुत 5 सप्लायर और 5 परचेजर जो है उनकी डिटेल्स वगैरह हो गई। तो इस तरीके से बेसिक जो ऑडिटिंग डिटेल्स होती है, मतलब ये सारी ये दर्शानी चाहिए कि हाँ भाई आपका जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है, आपका बिजनेस चल रहा है वो एग्जिस्ट करता है। तो गाइस यहाँ पे सेकंड चीज होती है डूइंग द प्रॉपर ऑडिट। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर जो आईएफओ जो होती है बेसिकली बॉडीज होती है, तो कई स्टैंडर्ड होते हैं जहां पे आपको ऑडिट भी करानी पड़ सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑडिट के अंदर क्या होगा, वो बेसिकली पूरा फिजिकली चेक करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है वो सच में स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है, उसको आईएसओ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। बाकी जो नॉन आईएएफ है वो तो आपके सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और सीधा 3 दिन के अंदर आपको आईएसओ सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू कर देते हैं। अब मैं बात करूंगा कि टाइप कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो टाइप होता है, जो पॉपुलर होता है, वो 9001 सीरीज वाला होता है। अब ये 9001 सीरीज क्या होती है, ये बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रेफर करती है। मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेस होते हैं सारे के सारे जो है 9001 को हमेशा प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है, आपका मतलब जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है, ये डिफाइन करता है कि उसके अंदर क्वालिटी है, वो एक नंबर 1 है। तो इससे क्या होता है, आपके जो कस्टमर है वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके जो सप्लायर्स है, आपके जो बायर्स है वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो प्रमोशन, ब्रांडिंग और बेसिकली क्वालिटी, इन तीनों के अंदर ये बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद में आईएसओ 14001 है, वो बेसिकली एक एनवायरनमेंट को शो करता है कि आपका जो एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर है, जो आप अपनी कंपनी के अंदर अपनी लेबर के लिए जो सेफ्टी मैनेजमेंट वगैरह कर रखी है वो एकदम प्रॉपर या स्टैंडर्ड तरीके से। उसके बाद में एक ओजस 18001 होता है जो बेसिकली हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट को यहाँ पे रेफर करता है। उसके अंदर आईएसओ 22000 होता है जो बेसिकली कंपनी की जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट होता है उसको रेफर करता है। उसके बाद में आईटी कंपनी के लिए आईएसओ 20000 होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, यहाँ पे कई सारे जो है मैंने 9 आईएसओ ले रखे जो इंडिया के अंदर काफी पॉपुलर होते हैं और यही घुमा फिरा के आईएसओ कंपनियां लेती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब मैं बात करूंगा कि कॉस्ट क्या आती है। तो देखिए अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो केवल प्रोफेशनल फीस आपसे चार्ज करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फीस, स्टैंडर्डाइज फीस हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये मैंने जो कॉस्ट या प्राइसिंग ले रखी है वो एज पर द मार्केट प्राइस ले रखी है जो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चार्ज कर रही है। अगर मैं आईएसओ 9001 की बात करूं तो ये मार्केट में आपको 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए में और 3 दिन के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन ये डिपेंड ये भी करता है कि ये आईएफ वाली ऑर्गेनाइजेशन इशू कर रही है, बॉडी इशू कर रही है या नॉन आईएफ। अब ये भी कैसे पता लगाना है अभी मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद में 14001 हो गया वो 4000 के समथिंग हो गया। उसके बाद में 45001 हो गया वो 4000, 13485, 5500 सी सर्टिफिकेट हो गया। आईएसओ 22000 हो गया उसकी 6000 कॉस्टिंग आ गई। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो आपको 9-10 ऊपर जो मैंने बताया उसी की बेसिकली मैंने आपको मार्केट प्राइस ओवरऑल बता दी। अब मैं बात करूंगा सैंपल की। जी हाँ, कि आईएसओ के सैंपल सर्टिफिकेट किस टाइप के होते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के आईएसओ सर्टिफिकेट यहाँ पे निकाल के रखे। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं लॉजिस्टिक प्लस प्राइवेट लिमिटेड। अभी देखिए इन्होंने जो आईएसओ सर्टिफिकेट लिया है ये बेसिकली नॉन आईएफ है। क्यों? क्योंकि नॉन आईएफ का मतलब क्या है, पहचानना कैसे आपको, सिंपली आपको इस टाइप का लोगो देखना है। जी हाँ, आप यहाँ पे ये लोगो देख सकते हैं। अगर आईएफ का लोगो कहीं से आईएसओ सर्टिफिकेट के अंदर लगा हुआ है इसका मतलब है वो आईएफओ बॉडी के अकॉर्डिंग जो जिसने टायर किया हुआ है, जिस कंपनी ने टायर किया हुआ है उसी कंपनी ने वहां पे इशू किया हुआ है। या फिर आप इस टाइप की जो नीचे देख सकते हैं एनएबीसीबी लोगो या एनएबीटी लोगो, इस टाइप के लोगो देख सकते हैं। अगर ये इशू किए हुए तभी वो आईएफ बॉडी का माना जा सकता है। मतलब ये सर्टिफिकेट क्या हो गया, ये सर्टिफिकेट बेसिकली कोई भी ऐसी कंपनी जो नॉन आईएफ है, जिन्होंने टाइप नहीं किया हुआ, लेकिन ठीक है फिर भी उसके बाद में ये एक स्टैंडर्ड इशू करती है। क्योंकि
जो बॉडीज होती है यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज होती है, जो आईएसओ की बॉडीज होती है, केवल आईएफएफ नहीं है, उसके अलावा भी है, लेकिन उन सबको इतनी मान्यता जो है प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में देखिए आप सेकंड सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये टीयूवी नॉट करके कंपनी है, इंडिया की है, बहुत अच्छी फेमस कंपनी है, तो इसने यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल आईएफओ रिलेटेड पूरा जो है बेसिकली यहाँ पे इशू किया हुआ है। तो टीयूएफ जो नॉट कंपनी है, इन्होंने इस कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, वो किया हुआ है 9001 जो 2015 जिसकी मैं बात कर चुका हूँ। और ये आईएफ से जो है पूरा टाइप है, तो प्रॉपर इस सर्टिफिकेट को आप जो है गवर्नमेंट टेंडर वगैरह उसके लिए भी आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नेक्स्ट सर्टिफिकेट की, आप देखिए यहाँ पे टीयूवी, अब ये भी देखिए एनएबीसीबी, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अभी आपने देखा था आईएफ के ऊपर यहाँ पे एनएबीसीबी, यहाँ पे ये देखिए ये वाला इस तरह की साइन अगर आप देखते तो आपको लगता है कि हाँ ये ट्रस्टेबल फैक्टर्स है, जो आईएफ बॉडीज है उन्होंने बेसिकली सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके अलावा देखिए आप और सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जैसे सीडीजीसी हो गया, तो ये बेसिकली अलग से बॉडीज होती है। इन सर्टिफिकेट को बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई छोटी सी कंपनी होगी, वो डेफिनेटली यूज में ले सकती है, क्योंकि उनको सिर्फ ब्रांडिंग और प्रमोशंस करना है, तो नो डाउट वो यूज में ले सकती है। लेकिन जिनको गवर्नमेंट टेंडर्स इन सब में पार्टिसिपेट करना है, उनको हमेशा आईएफ से हमेशा अपना सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अब आगे देख सकते हैं, ये देखिए कंप्यूटर एक एजेंसी या शिक्षा समिति का एक सर्टिफिकेट है, जो पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है, लेकिन आईएसओ सर्टिफिकेट है, तो डेफिनेटली ये लोग ब्रांडिंग वगैरह इन सभी चीजों के अंदर यूज में ले सकते हैं। तो ये मैंने पहचान करा दी कि किस तरीके किसी भी सर्टिफिकेट के ऊपर हमेशा आपको आईएसओ लेने से पहले हमेशा देखना चाहिए कि उनका सैंपल सर्टिफिकेट किस टाइप का है। वो जो सर्टिफिकेट इशू करने वाले उनका जो सैंपल सर्टिफिकेट है, वो आईएफ से वहां से आ रहा है, वहां से उसकी क्रेडेंशियल बॉडी से आ रहा है कि नहीं, उसकी वैल्यू है कि नहीं है, उसकी मार्केट में क्या प्राइस है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही आपको आईएसओ सर्टिफिकेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट ओके, आपण स्टॉप करूया, नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. सगळ्यांनी रोल नंबर चॅट बॉक्स मध्ये टाका. थँक्यू.